of the great efforts of two Hemant sirs, that is Dr. P. Hemant Kumar sir, who has taken the initiation along with the great support by our Dean and Principal sir, Dr. Hemant Toshikani sir. So I welcome you, sir, for this particular session. We are blessed to have you on this day because it was a long waiting that we were expecting you, and we are fortunate enough that we have got you on this day. And I thank P. Hemant Kumar sir for coordinating this and making you available for all the knowledge seekers which are going to hear you on this day all over the nation. So it will be my great honor for me to introduce you, sir, for the audience. So Dr. Sunil Kumar Joshi, sir, is presently working as the head of the department Rishikela Postgraduate Ayurvedic College, Haridwar, Uttarakhand. He has served as the former Vice Chancellor of Uttarakhand Ayurveda University, Dehradun. Sir has got an association, that is a foundation, which is named as Mrityunjaya Mission Foundation, which is started with a noble cause of treating the patients with the particular Marma science and Marma therapy. And sir has started it since 1986, and more than 50,000 patients have been successfully treated with Marma science and Marma therapy. Along with that, sir has gotten a vast academic experience, about more than 30 years of teaching experience, which must have created very great teachers also for the forthcoming science. So sir has published many of the books, to name of some of them, especially with related to Marma. So sir has published Marma Science and Principles of Marma Therapy, then Marma Vijnana Evam Chikitsa and Marma Chikitsa Vijnana, Marma Chikitsa and Aushopachara Dwara Chikitsa, and Marma Pranashana. Other than Marma, sir has also penned the books like the Prashna Vikalpa for MD entrance test and Shashti Upakrama, which is being published by Chokamba Surabharati publication. And sir has got a book on management of urinary disease, which is published by Satyam Publications. Sir has also published a book on the Paryavarnayam Swasthya. So other than that, sir has got more than 50 of research papers published in his name, along with he has given a social, he has treated with a particular social services he has done with giving more than 50 radio talks and television programs, which must have propagated the Ayurveda to the very common person also. And sir has got many awards. I'll be happy to name some of them. That is, sir has been awarded with the Ayurveda Bhushana by Pradeshik Ayurveda Sammelana, Uttar Pradesh, Lucknow. Sir has been awarded with Uttarakhand Ratna for surgery by Parvatiya Sansthan Manch, BHEL, Haridwar. Sir has been also in a gold medal ICIM 96 by Indian Foundation of Development of Integrated Medicine, Varanasi. Star medal by Indian Board of Alternative Medicine, Calcutta. And fellow he has got late Sri Sivanath Sharma Ayurveda Shodha Puraskara 2011 with the cash award of 50,000, and he also has a Mahamana Chikitsa Shodha Sammana 2015 with the cash prize, and he has got the appreciation for his work, noble work what he is doing in academic as well as the social work. So certificate of appreciation was done by Ayurvedic and Environmental Medical Services, UP government in the 1998. WCIM award of 97 by Indian Foundation for Development of Integrated Medicine, Varanasi. And sir has got a certificate of academic excellence as a visiting professor by International Institute of Integrated Medical Sciences, New Delhi. And also sir has got the member of Research Board of Advisors, the American Biographical Institute, North Carolina, USA. So many of the things, the particular, even the awards are there, which have been bestowed on the sir. So we are happy, we are fortunate enough to have such an stalwart of Ayurveda, and who happens to be Guru and Mahaguru, because my teachers may be your students, sir. So I am happy to be a part of this particular session to coordinate with you, sir. So I will be there throughout your presentation. So any technical problems, again, our technical support will also be there. So I request you to continue with your
preaching, sir, regarding the MRMA and its clinical aspects. Thank you, sir. You can carry on. Namaskar. It's my pleasure and privilege to attend this webinar on Marma science and Marma therapy. And in this webinar, I want to share my experiences with my colleague about the Marma science and Marma therapy. I am not going to teach the Marma science and Marma therapy because each and every colleague is well known to the concept of the Marma in the Ayurveda. As we know that it is the oldest way of healing in the world. And we can say that it is the half of the whole Ayurvedic surgery. चिकित्सा के लिए कहा गया कि ये चिकित्सा का, जैसे हम लोग वस्तु चिकित्सा को कहते हैं कि ये वस्तु चिकित्सा का आधा है, in same way just we can say that it is the half of the total surgical procedures or the surgical practice, especially in case of the all surgical procedures when we have to go for the surgical operation, not in the emergency, but we have to go for the planned surgery. Just we can prevent the surgical procedure because it gives instant response and it is very effective way of healing in the world. हम लोग सभी जानते हैं कि मर्म चिकित्सा क्या होती है और हमारे पास what is the concept of the marma in the Ayurveda, because we don't have the concept of the marma treatment in the Ayurveda, and we are knowing the side effects of the trauma or the effects of the trauma on these marma points. And Maharishi Sushruta has discussed 107 marma points in our human body, and they have suggested that we have to prevent these marma points from any trauma or during surgical intervention we have to take care of these marma points. तो सभी लोग हम लोग जानते हैं कि कैसे मर्म चिकित्सा को हम लोगों को करना है और मर्म चिकित्सा के विशेष रूप से हम मर्मों को कैसे बचाते हैं. And we are knowing just as in the laptop of the or the computer, with the help of the keyboard, just we are dealing with the functions of the computer. तो सारे के सारे प्रोग्राम्स को हम लोग डील करते हैं कीबोर्ड की सहायता से. इन सेम वे just we can deal with the functions of different body organs and the brain with the help of these marma points which are located all over the body and distributed all over the body. हम लोग सभी जानते हैं कि कैसे मर्म डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कहाँ का मर्म का वो है, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बट स्पेशली इन रेफरेंस टू योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे कल हुआ है, मैं थोड़ी सी बातें उससे संबंधित भी बताना चाहूंगा. बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग about the marma, just we have to know each and every aspect of the marma which is affecting our body by any means. चोट लगने से भी, आसन से, प्राणायाम से, ऑपरेटिव प्रोसेस से या उसकी चिकित्सा करने से मर्म पे क्या प्रभाव होता है, बिकॉज इट इज राइट टाइम टू डिस्कस these the relationship between the yogic postures and the marma. क्योंकि अभी आपने देखा कि कल ही हमारा जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हुआ है, तो उसमें मैं कुछ विशेष चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगा. whenever we are doing any posture or we are adopting any yogic posture, आसन कोई भी करते हैं और प्राणायाम करते हैं, ultimately just we don't have कि हमारे पास उसका एक्सप्लेनेशन नहीं होता कि how it is working on the body. कैसे मर्म चिकित्सा या मर्म हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं और कैसे आसन यदि हम लोग करते हैं तो how they are working on the body. तो इसको मैं दो तीन चीजों के बाद बताने के बाद जस्ट वी आर गोइंग टुवर्ड्स द जो इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ द मर्मा है उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी आर अडॉप्टिंग एनी पोस्चर रिलेटेड विद द योगा, अल्टीमेटली जस्ट वी आर स्टिमुलेटिंग सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द बॉडी. उन्हीं मर्मों को हम लोग उत्प्रेरित करते हैं. इट्स ए कॉमन पोस्चर विच इज पद्मासना. जब हम लोग पद्मासन करते हैं तो हम लोग जब एड़ी को रखते हैं तो it is going to touch, it is touching over the middle part of the inguinal part, and the Vittap marm is located over here. तो Vittap marm पे चोट लगने से महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि इसमें शांड्य हो सकता है या इसमें नपुंसकता हो सकती है. In same way, when we are adopting the Padmasana, ultimately just we are stimulating the Vittap marm. In same way, when we are we are adopting the Vajrasana. तो जब वज्रासन में बैठते हैं तो एड़ियां यदि हम ऊपर, हील को ऊपर करके बैठते हैं और उस पर जो हमारा हिस्सा टच करता है,
and that is known as the Katik Tarun. So Katik Tarun marm is also very important for the diseases of the और lower जो extremity है उसमें कोई भी पेन होगा, कोई sciatica होगा, sciatica कोई भी गिरदर्सी होगी, कोई पेन होगा, तो ultimately it is very important in same way in the pranayam. प्राणायाम में हमने देखा कि जो whenever we are taking the deep breath, ultimately the air is continuously irritating or stimulating the Sringatak marm. जब क्षवतु और धवतु की हम लोग बात करते हैं तो उसमें हमारी जो महर्षि सुश्रुत ने उसके विषय में लिखा है कि जब भी जो दूषित वायु है, कफ से दूषित वायु है, वो श्रृंगाटक मर्म को इरिटेट करके क्षवतु के रूप में निकलती है. तो ऐसे ही whenever we are taking the deep breath, ultimately we are stimulating the Sringatak marm, and with the help of the Sringatak marm we can achieve the good health of our all 4 sense organs. तो जो भी प्राणायाम हम लोग करते हैं उससे सिर्फ प्राण का ही विस्तार नहीं होता, उससे फेफड़े की ही तकलीफ ठीक नहीं होती, उससे हम लोग अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को ही स्टिमुलेट नहीं करते, बल्कि इन रिलेशन टू मर्मा जस्ट वी आर डीलिंग विद द वेलबीइंग ऑफ आवर ऑल 4 सेंस ऑर्गन्स. उससे आंख की शक्ति भी बढ़ती है, हमारे कान के सुनने की ताकत भी बढ़ती है, हमारी नाक से सूंघने की ताकत भी बढ़ती है, और हमारी जीभ की रस की को जानने की ताकत भी बढ़ती है. और उससे ये 2 चीज कही गई है कि व्हेनेवर देयर इज इंजरी टू द मन्या, जो मन्या है, मन्या और नीला, उन पर यदि चोट लगती है तो 2-3 तरह की चीजें होती है. उसमें गूंगापन होता है, स्वर की विकृति होती है और रसाज्ञान होता है. इन ईच एंड एवरीथिंग in यदि if all we are getting all these complications in our day to day life in any patient, just we can prescribe him to do for the pranayam. उसको प्राणायाम यदि हम कराते हैं तो उससे श्रृंगाटक मर्म स्टिमुलेट होता है. तो it was a very brief discussion about the relationship between the yogic postures and you can say the marma points. And now just we are dealing with the marma points, how we can deal with the marma points. First of all, just we have to say what is the marma point. As we know that they are very vital points, and when they are injured, a lot of complications may be there. But just retrograde way, when we are stimulating or applying some special protocol written in the Sastupakram, in these marma points, just we are getting a lot of benefits with the stimulation of these marma points. We know the classification of all marma points. हम लोग जानते हैं कि कैसे कैसे मर्म का क्लासिफिकेशन महर्षि सुश्रुत ने किया गया. तो उस पर 2-3 चीजें क्लिनिकल जाननी जरूरी होती है कि when we are talking about the मांसशिरा स्नायु अस्थि संधि, जो रचना धातु है उसकी कौन सी धातु से बना है, because whenever we are stimulating these marma points, definitely we have to consider the constituent part of the special marma point. किसी भी मर्म बिंदु को दबाने से पहले हमें उसके रचना धातु को जानना जरूरी होता है, क्योंकि यदि कोई मर्म सिरा मर्म है, यदि हम उसको अस्थि मर्म की तरह या मांस मर्म की तरह या स्नायु मर्म की तरह उत्प्रेरित करेंगे तो a lot of complication may be there and it may be fatal. So in case of the सिरा मर्म we have to apply very gently, बहुत ही थोड़ा सा प्रेशर देना होता है. But in case of other मांस मर्म एंड अदर मर्मा, जस्ट वी कैन गिव द मोर प्रेशर. तो एक ये चीज हो गई. दूसरी चीज क्या है कि जस्ट वी हैव टू नो द नेचर ऑफ द मर्मा, बिकॉज व्हेन वी आर नॉट नोइंग द नेचर ऑफ द स्पेसिफिक मर्मा, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद दैट पर्टिकुलर मर्मो पॉइंट. जैसे हमें पता है कि भाई जो मर्म है वो सौम्य हो सकते हैं, आग्नेय हो सकते हैं, सौम्याग्नेय हो सकते हैं, वायव्य हो सकते हैं. दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ द मर्मा अकॉर्डिंग to the nature of that particular marma point. So in that condition, just we have to consider this nature of marma point during the any intervention regarding the marma point. तो ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमें जाननी चाहिए. और इसके बाद हम लोगों को जानना चाहिए कि कैसे हम लोग इस मर्म के माध्यम से रोगों को ठीक करते हैं, कैसे ये मर्म चिकित्सा ठीक होती है. इसको हम लोग कहते हैं कि इट इज द मल्टीफोल्ड कैलकुलेटेड स्टिमुलस फ्रॉम पीएनएस टू सीएनएस. मल्टीफोल्ड कैलकुलेटेड स्टिमुलस है, क्योंकि मांस भी है, सिरा भी है, स्नायु भी है, अस्थि भी है, संधि भी है. और ये सारी की सारी चीजें जब हम लोग स्टिमुलेशन देते हैं तो सिर्फ किसी मर्म बिंदु पे देते हैं, तो सिर्फ वी आर नॉट गिविंग स्टिमुलेशन टू द स्किन ओनली. स्किन पर ही नहीं करते हम लोग. जब इसको करते हैं तो क्या समटाइम्स इसको हम कहते हैं युगल मर्म उत्प्रेरण. whenever we are putting pressure over this point, क्षिप्र मर्म को दबाते हैं तो क्या होता है, जस्ट वी आर गोइंग
प्रेस या कूर्च भी हम लोग दबा रहे हैं, कूर्च के साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, क्षिप्र को। तो ये युगल है। युगल का मतलब होता है कि दोनों चीजों को हम इकट्ठा दबाते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मर्मास। एंड इन सेम वे व्हेन वी आर डूइंग द उत्कटकासन, हम लोग यदि उखड़ू बैठते हैं, घुटने के बल बैठते हैं और हाथों को यहाँ पे लगा लेते हैं, घुटने के नीचे लगा लेते हैं, तो हमारा जो मणिबंध मर्म है और पैर का जो गुल्फ मर्म, पैर का जो इंद्रवस्ती मर्म है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है एंड इट गिव्स वेरी गुड रिस्पॉन्स टू इवैक्यूएट द फीकल मटेरियल। तो हमारा अर्ज को निकालने के लिए एक कॉम्बिनेशन बनता है। तो उसको हम लोगों ने एक युगल मर्म चिकित्सा की बात की है कि जहां दो मर्मों को हम लोग डिफरेंट मर्मास को हम इकट्ठा दबाते हैं एंड जस्ट वी आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ इट। अभी तक हम लोगों ने जो पिछले जो एनआईए में हम लोगों ने आप लोगों को एक इसका एक्सपोजर दिया था, उसमें हमने सिंगल स्टिमुलेशन की बात की थी। अब इसके बाद हम लोग क्योंकि फर्दर स्टेज में हम लोग जब बात करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि व्हेन वी आर putting pressure to the क्षिप्रमर्म and ultimately just we are also stimulating the कूर्चमर्म. In same way, a lot of postures are there. सिर में भी हम लोग उसको दबाते हैं। तो जब हम इसको इस ढंग से दबाते हैं तो कूर्च और कूर्च सिर मर्म के साथ हम लोग इन अपांग, आवर्त, उत्क्षेप और शंख मर्मों को दबाते हैं। तो ये क्या है, युगल मर्म चिकित्सा हम लोगों ने इसको डेवलप किया है और इसका जस्ट वी हैव मेड द डिफरेंट इंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ एक तरह से उसका रिस्पॉन्स होता है और उसको अलग ढंग से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई है। एंड वी आर गेटिंग द मोर रिजल्ट्स with the help of this kind of युगल मर्म चिकित्सा। युगल मर्म चिकित्सा का मतलब क्या है कि दो मर्म हम लोग इकट्ठा दबाने लगते हैं, इकट्ठा दो मर्म दबते हैं और उसका जो कंबाइंड इफेक्ट होता है बॉडी पे, इट इज इंटायरली डिफरेंट। सो जस्ट वी कैन से इट इज ए न्यू रिसर्च वर्क इन द फील्ड ऑफ द मर्मा साइंस एंड मर्मा थेरेपी। अब हम लोग जस्ट वी आर नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज मर्मो पॉइंट्स। मर्म चिकित्सा जाननी उतनी सरल है कि जितना आप समझ सकते हैं कि ये बहुत सरल प्रोसीजर है। जस्ट वी हैव सिंप्लीफाइड द ऑल द प्रोसीजर्स बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू कॉम्प्लिकेट द प्रोसेस, यदि आप इसको प्रकृति के उसमें बंधन में बांधेंगे, दोष दूषी के बंधन में बांधेंगे और आप कहेंगे कि नहीं इसमें ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तब आप इस मर्म साइंस को उतना पॉपुलराइज नहीं कर सकते। व्हेन यू आर गोइंग टू सिंप्लीफाई द होल प्रोसेस ऑफ द मर्मा थेरेपी एंड मर्म चिकित्सा एंड को आप यदि सिंप्लीफाइड करेंगे तभी ये ज्यादा पॉपुलराइज होगी एंड जस्ट वी आर गेटिंग द मोर बेनिफिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट वी हैव टू कंसीडर द इफेक्ट ऑफ दीज मर्मो पॉइंट्स। कैसे ये काम करते हैं इसको जाने। तो जस्ट वी आर स्टार्टिंग विद द मर्मो पॉइंट ऑफ द हेड। हेड से हम लोग शुरू करते हैं बिकॉज a lot of diseases related with the eye, ear, nose and throat can be solved with the stimulation of marma point of the head and the neck. तो मर्म जो सिर के मर्म होते हैं उसमें हम देखते हैं कि अधिपति मर्म होता है और हम लोग जानते हैं कि ये 5 तत्वों से बनी हुई होती है और इसको 5 तत्व हम लोग क्यों मानते हैं। योग में इसको अलग अलग ढंग से बताया गया कि कौन सा उंगली कौन से तत्व को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन हम आयुर्वेद में जब मानते हैं तो अंगूठे को हम लोग मानते हैं कि आकाश तत्व होता है। यहाँ से हम लोग करते हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इसके मूल एक तरह से उसका शब्द भी होता है, जैसे हंग, यंग, वंग, रंग, लंग। ये इस ढंग के 5 तत्वों के लिए 5 एक तरह का एक मूल उसका एक तरह से शब्द भी है और उसके आधार पर भी हम उसकी चिकित्सा करते हैं। ये 5 तत्वों के माध्यम से हम लोग 5 तत्वों को इकट्ठा करते हैं और अधिपति मर्म पर इसको हम लोग स्टिमुलेट करते हैं। इट इज द मास्टर पॉइंट। देखिए, और जितनी भी जो ओरिएंटल मेडिकल साइंसेज है उन्होंने उसको मास्टर पॉइंट कहा है, लेकिन हमारे यहाँ उसका नाम ही अधिपति कहा गया। जैसे लंकाधिपति, लंका का अधिपति मीन्स मास्टर ऑफ द मास्टर्स, है ना, मास्टर ऑफ द मास्टर्स। तो अधिपति उसको राजा को भी नहीं कहा गया। राजाओं का जो राजा होता है उसको अधिपति कहा जाता है। इट मीन्स इट इज द मास्टर ऑफ ऑल मास्टर पॉइंट्स। जितने भी हमारे मर्म चिकित्सा के बिंदु हैं उनका भी जो अधिपति होता है उसको हम लोगों ने अधिपति मर्म कहा है। उसके बाद इसमें हमें 5 सीमंत मर्म होते हैं एंड दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर डीलिंग विद द फंक्शंस ऑफ द ब्रेन। जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम लोग इसके माध्यम से ठीक कर सकते हैं। और इसमें जैसे महर्षि सुश्रुत हैज written that if there is injury to the सीमंत मर्मास, तो then you are getting 4 main complications। उसमें एक उन्माद कहा गया। उन्माद का मतलब इंसेनिटी नहीं है, उसमें each and every aspect of the mind or the brain, यदि ब्रेन का कोई भी फंक्शन किसी भी हालत में कुछ कम है तो हम उसको सबको उन्माद या पागलपन, किसी से कहते हैं इफ द पर्सन इज नॉट नोइंग द प्रॉपर इंफॉर्मेशन एट हिज लेवल, तब भी हम उसको कहते हैं कि भाई ये तो तू पागल है।
आप समझते हैं उन्माद की स्थिति हो सकती है। तो उन्माद का मतलब यहाँ किसी भी तरह की मानसिक विकृति या उसकी कमी, इंटेलिजेंस की कमी को भी हम लोग पागलपन कहते हैं। तो उन्माद एक महत्वपूर्ण लक्षण है। उन्माद, इसके बाद उन्होंने लिखा है कि इसमें चित्तनाश होता है, और चित्तनाश के साथ साथ उन्होंने लिखा है कि भय, और भय के साथ चौथी मृत्यु। तो तीन जितनी भी चीजें वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डील करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस सीमंत मर्म जस्ट वी कैन कोप अप विद द सिचुएशन रिलेटेड विद द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो उसमें क्या करना है, जैसे हम लोग इसको कहते हैं इसे क्लोज लोटस पोज, व्हेन वी आर पुटिंग दीज टू फिंगर्स, ये जो हम ये थिनर इमिनेंस हाइपोथिनर इमिनेंस को यहाँ पे रखा, तो इस तरह से युगल यहाँ पे भी हम मर्म कर रहे हैं। यहाँ से जो मर्म हमारे कूर्च और कूर्च सिर की बात हम लोग कर रहे हैं, कूर्च, और इसमें हम जो दबा रहे हैं तो यहाँ पे पांग है, आवर्त है, उत्क्षेप है, संख है, और इसके साथ साथ सीमंत, दोनों तरफ सीमंत मर्म है। और एंड विद द हेल्प ऑफ दिस सिंगल पोज जस्ट वी आर स्टिमुलेटिंग द 13 मर्मा पॉइंट्स ऑफ द हेड। 4 इधर, 4 दूनी 8 और 5 13, 5 मर्म स्थान हमारे जो सिर में होते हैं, और उनके माध्यम से हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को या ब्रेन के लीजन्स को ठीक कर सकते हैं। तो ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट दीज सीमंत मर्मास आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर वेरी vital. If there is injury, the person may die and a lot of complications may be there. तो उन सभी के लिए ये सारे, ये जो हमारा जो क्लोज लोटस पोज है, इसमें भी हम युगल मर्म चिकित्सा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपांग आवर्त और उत्क्षेप को भी दबा रहे हैं, और यहाँ पे हम एक एक सीमंत को भी दबा रहे हैं, दोनों एस्ट्रियन को भी दबा रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारे हाथ के जो कूर्च मर्म है उसका भी प्रेशर इस पे होता है। दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है, इसको भी हम लोग युगल मर्म चिकित्सा कहते हैं। और इसके बाद आप देखते हैं कि एक मर्म स्थान और नीचे आता है, जिसको हम लोग यहाँ पे स्तपनी मर्म कहते हैं, और स्तपनी मर्म को हम लोग मानते हैं कि ये विशल्यग्न मर्म है। कैसे ये विशल्यग्न मर्म है, और ये हमने इसको समझ सकते हैं कि श्रवण कुमार का यदि आप एक रेफरेंस लें, श्रवण कुमार की आंखों के बीच में, जिसको स्तपनी मर्म कहते हैं, यहाँ पर राजा दशरथ का तीर लगा था, और उससे उनकी तुरंत, यदि उसमें तीर निकाल दिया गया तो तुरंत वात के क्षय से उनकी मृत्यु हो गई। और यदि उस तीर को वहां लगा रहने दिया जाता और वो अपने आप स्पॉन्टेनियस हीलिंग होती तो उनकी मृत्यु नहीं होती। ये समझ सकते हैं कि ये विशल्यग्न मर्म को कैसे हम लोग जान सकते हैं। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट मर्मा पॉइंट एंड नोन एज द स्थापनी मर्म। यहीं पे आज्ञा चक्र होता है। अब आप ये देखिए कि इसके नीचे हमारा जो श्रृंगाटक मर्म है, श्रृंगाटक मर्म is responsible for it is very important for receiving all stimulus from all 4 sense organs। चारों सेंस ऑर्गन्स की जो बातें होती हैं वो हमारी ये श्रृंगाटक मर्म के माध्यम से होती है। और श्रृंगाटक मर्म में बिकॉज इट इज अ डीप सीटेड, अंदर की तरफ होता है, और जब भी हम लोग जोर से सांस लेते हैं तो आप देखते हैं कि यदि कोई भी हवा लगती है या कोई ऐसी धुआं लगता है तो धुआं उसी स्थान पे श्रृंगाटक को इरिटेट करता है और उसके बाद छींक आने लगती है। तो जब भी हम कोई मर्म स्थान को दबाते हैं तो उसको दबाने के लिए रूट ऑफ द नोज को हम प्रेशर देते हैं श्रृंगाटक के लिए। एंड जस्ट वी आर मेकिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू मर्मा पॉइंट्स विद स्पेसिफिक सेंस ऑर्गन। यदि हमें कान की तकलीफ है, यदि कान में सुनना कम हो रहा है, कान में कोई प्रॉब्लम है, टिनिटस है, तो व्हाट विल बी द कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन विल बी द विदुर मर्म विद द श्रृंगाटक मर्म। And when there is diminution of the vision is there, then apang and avarth murm along with the shringatak murm will be the answer. And the third one, when there is anosmia, और आजकल खासकर जब हम लोग कहते हैं कि कोरोना में एक मुख्य लक्षण है कि जो गंध का नाश हो जाता है, उसमें श्रृंगाटक मर्म और यदि हम उसको दबाएं तो ये हमारी निश्चित रूप से हमारे उन चीजों को ठीक करता है जिससे गंध नाश होती है। तो द कॉम्बिनेशन विल बी the Shringatak murm and the Fana murm in case of the nose disorders, and in case of the diseases related with the tongue, जिसमें हम लोगों ने बताया कि रस अज्ञान हो सकता है, और उसके साथ साथ 2-3 चीजें और हो सकती हैं जिसमें आप बोलने में दिक्कत हो सकती है कि इसमें, और कहीं भी कोई बोलने में की दिक्कत हो सकती है या उसके स्वाद में कोई दिक्कत हो सकती है, तो उसको हम लोग किसके माध्यम से ठीक कर सकते हैं? कंठ के मर्मों के माध्यम से, जिसमें धमनी, 2 मन्या, 2 नीला, और उसके साथ साथ जो मर्म स्थान होगा वो श्रृंगाटक मर्म होगा। तो इट विल बी द कॉम्बिनेशन फॉर द डिजीजेस रिलेटेड विद द टंग, स्पेशली इन रेफरेंस टू द टेस्ट। तो टेस्ट के रेफरेंस में हम लोग ये कॉम्बिनेशंस हम लोगों ने बनाए, और इससे जस्ट यू कैन डील ईच एंड एवरी ऑफ ऑल दीज सेंस ऑर्गन्स। तो हम लोगों ने इतनी चर्चा हम लोगों ने की कि भाई ऊपर के रोगों को किस ढंग से हम ठीक कर सकते हैं सिर के रोगों में, और स्पेशली सिर के रोगों के साथ साथ जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं
उनको कैसे डील कर सकते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज 5 or 6 मर्मा पॉइंट जस्ट वी कैन डील विद ऑल डिजीजेस रिलेटेड विद दीज सेंस ऑर्गन्स। अब इसके बाद हम लोग कुछ और चर्चा करते हैं कि भाई स्पेशली इन रेफरेंस टू द सर्जिकल। देखिए सर्जरी में हम लोग के पास एक मुख्य रूप से एक इश्यू होता है कि जस्ट वी हैव टू टेक केयर ऑफ द पेन ऑफ डिफरेंट साइड्स। शरीर के विभिन्न हिस्सों में होने वाले दर्द को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये अपने में एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। और खास करके स्पेशली इन केस ऑफ द न्यूरो सर्जरी और न्यूरोलॉजी और द ऑर्थोपेडिक सर्जरी, वी हैव टू डील विद द डिफरेंट काइंड ऑफ पेन्स एंड एक तरह से उसका डिस्फंक्शन भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि एट्रोफी हो जाती है, कई बार उसका माल फॉर्मेशन होने लगती है, कई बार उसका रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट होता है। इन ईच एंड एवरी कंडीशन जस्ट वी कैन हेल्प द पेशेंट विद दीज मर्मा स्टिमुलेशंस। सबसे पहले मैं आप लोगों को ऊपर की तरफ से बताना चाहूंगा कि गर्दन की तरफ से जो क्रिकाटिका मर्म है, क्रिकाटिका मर्म पे आघात होने से देयर इज movement of the neck, abnormal movement of the neck will be there if the cricatica marm is assaulted or the injured। तो गर्दन पे चोट लगने से निश्चित रूप से ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बट व्हेन वी आर गेटिंग दिस सिम्टम इन डिफरेंट डिसऑर्डर्स, द स्टिमुलेशन ऑफ द क्रिकाटिका मर्म्स हेल्प्स अ लॉट। तो जब भी किसी व्यक्ति के गर्दन में चोट लगने के बाद या पार्किंसंस डिजीज में या किसी और वजह से उसकी गर्दन हिलने लगती है, तो उसमें हम लोग और मर्मों के साथ साथ यदि क्रिकाटिका मर्म को स्टिमुलेट करते हैं, देन वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स इन दिस कंडीशन। तो क्रिकाटिका मर्म के नीचे यदि हम आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारा पास जो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बीमारी होती है उसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। ग्रीवाशूल की बात हम लोग करते हैं, ग्रीवाशूल की बात करते हैं। कंठ और ग्रीवा कि दोनों की बीमारियों को ठीक करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण मर्म बिंदु होता है उसको हम लोग कहते हैं कि भाई ये जो मर्म स्थान है ये क्षिप्र मर्म स्थान है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्षिप्र मर्म को हम लोग जाने तो हम लोग इसको ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि यदि हम हाथ को इसको पूरे 90 डिग्री पे हम लोग इसको रखें और दूसरे हाथ के अंगूठे की ये जो क्रीज है इसको इस वेब पे रखेंगे और इसको वेब पे रखने के बाद यदि हम ऊपर रखेंगे, देखिए इसको वैसे तो हम लोग मानते हैं कि ये एक स्नायु मर्म की बात हम लोग करते हैं, लेकिन व्हेन वी आर प्रेसिंग दिस रेटिनोकुलम, इसको बीच में दबाते हैं तो उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते। लेकिन जब हम ये पीछे दबाते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक तरह से इसको दोनों से नीचे भी हाथ में प्रेशर पड़ता है, कूर्च और इसके साथ साथ हम लोग क्षिप्र मर्म को दबाते हैं, तो ये हमारी गर्दन की बहुत सारी बीमारियों को ठीक करती है। एंड नाउ इट इज एंड स्पेशली इन दिस पीरियड ऑफ द कोरोना, each and every person is indulged in the computer and mobile and different activities में। तो गर्दन का सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि मेरे पास इस समय सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस विद चक्कर जितने आते हैं कि बहुत सारे चक्कर वाले मरीज आ रहे हैं कि भाई मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, और जब भी हम लोग झुक के काम करते हैं तो बहुत तेजी से चक्कर आते हैं, और बहुत सारे केसेस इस सीजन में मिलते हैं। सामान्य रूप से इस सीजन में हमको लोगों को ये केसेस नहीं मिलते। ठंड में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जब होती है तो चक्कर के मरीज ज्यादा आते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ आज ही मेरे पास 3 या 4 केसेस हैं जिसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के साथ साथ एक तरह से वर्टाइगो भी है। तो इन केस ऑफ द वर्टाइगो एंड ऑल सर्वाइकल पेन और सर्वाइकल स्टिफनेस, जस्ट वी हैव टू कंसीडर द अंशमर्म। अंशमर्म को हम जानेंगे कि अंशमर्म को जानने के लिए यदि हम इसको देखिए कि 90 डिग्री पर यदि हम इसको रखते हैं, इसको मैं दिखाना चाहूंगा कि यदि हम इसको हाथ को ये 90 डिग्री पे रखते हैं और ये वाला एंगल 45 डिग्री का होता है, एंड जस्ट वी आर गोइंग टू टच द नेक विद द हेल्प ऑफ ये हमारा जो बॉर्डर है, अब ये इंडेक्स फिंगर ये टच करनी चाहिए नेक को, स्ट्रेट रखिए, एंड व्हेन द मिडिल फिंगर अप्रोचेस, दैट इज द अंशमर्म। उस अंशमर्म को दबाने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो क्रिकाटिका मर्म और अंशमर्म यदि आप दबाते हैं तो जितने भी केसेस वर्टाइगो के होते हैं, गर्दन में दिक्कत होने वाली तकलीफ होती है, उनमें बहुत आश्चर्यजनक रूप से फायदा होता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक है, एंड स्पेशली इन केस ऑफ द सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जस्ट वी हैव टू कंसीडर द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस अंशमर्म। तो अंशमर्म से आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को ठीक कर सकते हैं, सर्वाइकल पेन को ठीक कर सकते हैं, एंड स्पेशली व्हेन देयर इज वर्टाइगो, देन we have to combine the अंशमर्म along with the क्रिकाटिका मर्म। तो क्रिकाटिका मर्म के साथ मर्म को स्टिमुलेट करने के लिए क्या करना है, जस्ट यू हैव टू पुट इन दिस वे, आप हाथों को ऐसे कर लें, और आप जब देखेंगे कि हाथों को ऐसे करने के बाद ये जो
थिनर इमिनेंस है, ये आपने ज्वाइंट पे रखना है, हेड और नेक के ज्वाइंट पे रखना है, एंड जस्ट यू हैव टू प्रेस, आगे को दबाइए, पीछे को छोड़िए, आगे दबाइए, फिर छोड़िए, आगे को करिए, पीछे दबाइए, और इस ढंग से आप 15 से 18 बार प्रेशर देते हैं, तो उससे आप क्रिकाटिका मर्म को स्टिमुलेट करते हैं। एंड आफ्टर डूइंग दिस वेबिनार और डूइंग वर्क ऑन कंप्यूटर, जस्ट वी हैव टू स्टिमुलेट दिस मर्मा। इसको हम लोग तो अपने लिए करते रहते हैं, जब भी हमें कंप्यूटर पे आजकल, क्योंकि वेबिनार का सीजन है, बहुत सारे हम लोगों को वेबिनार में भाग लेना पड़ता है, एंड देन वी आर फीलिंग सम पेन इन दिस जॉइंट एंड सम स्टिफनेस इन द नेक। तो उसमें आप ये अंशमर्म कर लीजिए, अंशमर्म के साथ साथ क्या कीजिए, इसको जो हमारा क्रिकाटिका मर्म है इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। दूसरे व्यक्ति के लिए क्रिकाटिका मर्म को दबाने के लिए हल्का सा गर्दन को पीछे से हल्का सा झुकाइए, एंड देन यू कैन प्रेस द क्रिकाटिका मर्म विद द हेल्प ऑफ थंब एंड द इंडेक्स फिंगर। हल्के हाथ से उसको दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, और 0.8 सेकंड का स्टिमुलस। किसी भी मर्म को हम लोग दबाते हैं तो कितनी देर के लिए दबाते हैं? मिनिमल स्टिमुलस इज सफिशिएंट फॉर प्रोड्यूसिंग द थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ द मर्मा थेरेपी। तो 0.8 सेकंड से कम का स्टिमुलस नहीं होता, क्योंकि 0.8 सेकंड इज द मिनिमल स्टिमुलस विच इज वेरी मच फ्रेंडली to our body, because the heart takes 0.8 seconds for one cardiac cycle. इसको हम लोग कितनी बार दबाते हैं? 15 से 18 बार दबाते हैं, क्योंकि एक कोई यूनिट हमें जरूर चाहिए। क्योंकि यूनिट क्यों चाहिए? कितना मिनिमल से हमारा काम हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारा एक्सपर्टीज जब हम आपके पास होता है तो 3, 4, 5 स्टिमुलस में ही काम हो जाता है। लेकिन यदि किसी वजह से यदि आपके स्टिमुलस सही जगह पे नहीं लगते, तो 15 से 18 स्टिमुलस सफिशिएंट होते हैं। और उसको भी हम लोगों ने इसलिए माना है कि वी आर टेकिंग 15 to 18 ब्रेथ्स इन 1 मिनट। तो लगभग यदि आप रेस्पिरेशन की रेट का बीच का भी 0.8 सेकंड का दिया, उसके बाद आपने छोड़ के थोड़ा समय में आपकी पूरी थेरेपी एक मर्म स्थान पे हो जाती है। इसलिए ये मिनिमल स्टिमुलस है, जिसको हम 0.8 सेकंड का स्टिमुलस कहते हैं, एंड 15 to 18 टाइम्स in 1 sittings and 3 sittings in a day we have to give this stimulation. तो ये 3 बार हम लोग दिन भर में मर्म का स्टिमुलेशन देते हैं, और 0.8 सेकंड का देते हैं, 15 से 18 बार एक सिटिंग में देते हैं। और जो प्रेशर होता है वो अफोर्डेबल होना चाहिए, कि पेशेंट उस प्रेशर को फील करे, महसूस भी करना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको सिर्फ सिंपल ऐसे टच करके आप ऐसे करने लगेंगे तो आपको उसका इफेक्ट नहीं मिलेगा। पेशेंट उसको अप्रिशिएबल प्रेशर होना चाहिए, बट इट शुड बी अफोर्डेबल। वो अफोर्ड भी कर सके, उसको महसूस कर सके, और साथ साथ उसको सह सके। इफ देर इज एनी सीवियर पेन और सम सीवियर कॉम्प्लिकेशन, इमीडिएटली यू हैव टू विड्रॉ द प्रेशर। तुरंत विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि उसमें कोई प्रेशर हो रहा है, कोई उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, कोई टेंडरनेस ज्यादा है, कोई पेन हो रहा है, कोई उसमें एबनॉर्मल फीलिंग हो रही है, कुछ उसमें गर्मी सर्दी उस पॉइंट को महसूस कर रहा है, तो इंस्टेंटली जस्ट वी आर विड्रॉल कर लेते हैं, उसको विड्रॉल कर लेना चाहिए उस प्रेशर को। एंड आफ्टर दैट जब वो फिर ठीक हो जाए, देन यू कैन गिव द स्टिमुलस। कम ताकत का या कम प्रेशर का स्टिमुलस आप उसको दे सकते हैं। अब गर्दन के बाद दूसरी चीज आती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि जस्ट वी हैव सम फ्रोजन शोल्डर, और चाहे टेंडिनाइटिस हो, इसमें कोई दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से देयर इज पेन इन द शोल्डर जॉइंट। तो इन सेम वे, इफ देयर इज पेन इन द शोल्डर जॉइंट, एक मर्म स्थान ये होता है, और दूसरा मर्म स्थान यदि हम हाथ को ऐसे रखते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारा जो एट द लेवल ऑफ D3 जो स्पाइनस प्रोसेस होता है, और मिड लाइन से जो हमारा स्पाइन है, स्पाइन की मिड लाइन से 4 अंगुल की दूरी पर दोनों तरफ, और अंश फलक मर्म होता है। तो अंश और अंश फलक यदि हम लोग उसको दबाते हैं, साथ में क्षिप्र मर्म दबाते हैं, कूर्पर मर्म दबाते हैं, और अंश फलक दबाते हैं, तो ये फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एंड यू आर गेटिंग इंस्टेंट रिस्पॉन्स इन फ्रोजन शोल्डर विद द स्टिमुलेशन ऑफ दीज मर्म पॉइंट्स। जैसे मैंने बताया कि क्षिप्र मर्म दबा सकते हैं, या कूर्पर मर्म दबा सकते हैं, अंश दबा सकते हैं, और ये अंश फलक मर्म दबा सकते हैं। और यदि इसके साथ साथ आपको और कोई दिक्कत है, तो आप गर्दन में यदि कोई दिक्कत है, तो इसमें आप श्रृंगाटक मर्म या कटिक क्या कहते हैं, क्रिकाटिका मर्म, इसको क्रिकाटिका मर्म जो होता है, क्रिकाटिका मर्म भी आप इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो इट इज द कॉम्बिनेशन फॉर द फ्रोजन शोल्डर। उसके बाद एक और बीमारी आजकल इट इज वेरी कॉमन नाउ ए डेज, एंड इट इज नोन एज द टेनिस एल्बो। तो गोल्फ एल्बो, टेनिस एल्बो करके हम लोग कहते हैं कि इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम related with the elbow movement and there is severe pain in the elbow, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक मर्म स्थान नीचे, इसको हम लोग इंद्रवस्ती कहते हैं, ऊपर आनी और दोनों कूर पर
इसको मर्म को स्टिमुलेट करते हैं तो हमारी टेनिस एल्बो में बहुत फायदा होता है। और उसके बाद एक दूसरी और बीमारी होती है जो हम लोग कहते हैं, जिसको कार्पल टनल सिंड्रोम से सारे के सारे एक तरह से सर्जिकल लीजन्स हैं। और इसमें न्यूरोसर्जन की भी जरूरत होती है, न्यूरोलॉजिस्ट की भी जरूरत होती है, ऑर्थोपेडिक सर्जन की भी जरूरत होती है। इन सभी में मर्म चिकित्सा के माध्यम से आप व्यक्ति को फायदा दे सकते हैं। आप समझेंगे जब भी आपके पास कोई ये रोगी आएगा और आप उससे हिस्ट्री पूछेंगे तो बहुत सारे रोगी इन सभी डॉक्टर्स के पास होकर आपके पास आते हैं। और उसमें यदि हम मर्म चिकित्सा के माध्यम से उसको रिस्पॉन्स देते हैं तो इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर वी पीपल कि भाई जस्ट वी आर able to resolve the problem of the patient who is suffering with these problems related with the orthopedics or the neurology। तो उन चीजों में फायदा होता है इसमें। अब कार्पल टनल सिंड्रोम की हम लोग बात करते हैं तो कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए जब भी कहीं पर लीजन होता है तो एक सामान्य नियम हम लोगों ने जाना है कि उस मर्म स्थान से एक मर्म का ऊपर और एक मर्म नीचे, उसके आसपास के मर्मों को हम लोग स्टिमुलेट करते हैं। तो यदि कार्पल टनल सिंड्रोम है और आप देखते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा पेनफुल है तो आप इसको भी स्टिमुलेट कर सकते हैं, जिसको हम लोग मणिबंध कहते हैं। मणिबंध में टू पुट द फिंगर एंड द थंब अराउंड द रेस्ट जॉइंट, और उसको करके आप इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। लेकिन दूसरे को दबाना है तो दूसरे को दबाने के लिए दोनों अंगूठे आप उस पर रखेंगे और नीचे से सपोर्ट करके ये प्रेशर ऐसे अंगूठे से प्रेशर देंगे। तो ऊपर से प्रेशर दे सकते हैं, इसको आप एक तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करा सकते हैं। उसको हल्का सा दोनों ढंग से भी प्रेशर दे को दबाते हैं और क्षिप्र मर्म को दबाते हैं। इससे हमारी जो कार्पल टनल सिंड्रोम है इसमें फायदा होता है। तो ये तो हमने अपर एक्सट्रीमिटी के जितने भी लीजन्स हो सकते हैं, संभावित लीजन्स हो सकते हैं जो पेनफुल होते हैं, उनमें मर्म चिकित्सा से कैसे फायदा होता है वो हम लोगों ने जानने की चेष्टा की। अब हम लोग आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आज हम लोग कोरोना के संकट से गुजर रहे हैं। And in case of the COVID-19, the respiratory system is affected। जब हम महर्षि सुश्रुत का कंसेप्ट देखते हैं तो उन्होंने बताया है कि हमारे शरीर में जो स्तनमूल और स्तनरोहित मर्म होते हैं, यहाँ पे आप देखें कि यदि निपल है, निपल से 2 अंगुल ऊपर और 2 अंगुल नीचे स्तनमूल और स्तनरोहित मर्म होते हैं। और उन मर्मों के माध्यम से यदि उस पर चोट लगती है तो उसमें आप ये देखिए कि हिमोथोरेक्स हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, पायोथोरेक्स हो सकता है, हाइड्रोथोरेक्स हो सकता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये सारी की सारी चीजें कब होंगी? जब when there is any inflammatory process, any injury, any inflammation, कोई भी वहां पे लीजन है उसकी हो रहा है तो फेफड़ों में तकलीफ हो सकती है। तो उस सब में आनी और उर्वी मर्म बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आनी और उर्वी, इसके साथ साथ जो स्तनमूल और स्तनरोहित, और इसके साथ साथ यदि हम लोग पीछे से देखें तो अंश फलक और बृहति मर्म, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और इन मर्मों के साथ साथ आप कोविड के लक्षणों में भी आप इससे फायदा दे सकते हैं क्योंकि ये इंस्टेंट काम करते हैं। व्हेन देयर इज एनी डिस्निया, और यदि आप समझ रहे हैं कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है एंड वी डोंट हैव द मैनेजमेंट, इंस्टेंट मैनेजमेंट फॉर दिस डिस्निया, तो तब तुरंत हम आनी और उर्वी मर्म को यदि हम लोग दबाते हैं तो उस समय तुरंत फायदा होता है बिना इंट्रावेनस इंजेक्शन के। यदि आप उस समय तुरंत कोई ब्रोंको डायलेटर नहीं दे पा रहे या कोई ब्रोंको डायलेटर इंट्रावेनस इंजेक्शन नहीं दे पा रहे या कोई स्टेरॉइड नहीं दे पा रहे, तो आनी और उर्वी मर्म से आप आश्चर्यजनक रूप से उसके परिणामों को लेते हैं। तो आनी उर्वी, इधर स्तनमूल स्तनरोहित और पीछे अंश फलक और बृहति, इनका कॉम्बिनेशन जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं उन सबको ठीक करने के लिए बहुत अच्छा एक तरह से पैकेज है। एंड विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज मर्मा वी कैन ट्रीट द डिजीजेस रिलेटेड विद द चेस्ट और स्पेशली रिलेटेड विद द लंग्स एंड द जो ब्रोंकस है, ट्रेकिया है, इन सभी से इसमें फायदा होता है। लेकिन यदि इसके साथ साथ गला भी खराब है, गले की तकलीफ भी हो रही है, तो उसमें क्षिप्र मर्म का अपना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसके साथ हम लोग क्षिप्र मर्म को भी कर सकते हैं। इफ देयर इज एनी मल्टी ऑर्गन फेलियर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मल्टी ऑर्गन फेलियर की बात कर रहे हैं तो क्या ये तल हृदय मर्म हार्ट के लिए होता है। तो हार्ट के जो चारों हैं, चाहे हाथ का है चाहे पैर का तल हृदय मर्म है, इनके माध्यम से आप यू कैन स्टिमुलेट द फंक्शन ऑफ द हार्ट के फंक्शंस को स्टिमुलेट कर सकते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इंद्रवस्ती मर्म यू कैन स्टिमुलेट द मर्मा ऑफ द फंक्शंस ऑफ द किडनी। तो किडनी, हार्ट, लिवर, ये सारे के सारे फंक्शंस को स्टिमुलेट करने के लिए ये आप कूर्पर मर्म
जब की बात हम लोग करते हैं तो कूपर मर्म के माध्यम से हम लोग लिवर और गॉल ब्लैडर और स्प्लीन इनके फंक्शंस को हम लोग स्टिमुलेट कर सकते हैं या इसको हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। सो जस्ट इन दिस कंडीशन आणी उर्वी इन मर्मों के साथ साथ हम लोग जो स्तन मूल, स्तन रोहित और अंश फलक और पीछे बृहति के साथ साथ हम लोग तल हृदय और कूपर तथा इंद्रवस्ती मर्म को भी स्टिमुलेट करेंगे। तो इससे मल्टी ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करने में या उसको उसके फंक्शंस को रेगुलेट करने में सहायता होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण मर्म स्थान है। और उसके बाद जो कूपर मर्म है वो अपने में बहुत महत्वपूर्ण मर्म स्थान है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यदि यहाँ से देखें इसको हम लोग स्टर्नल नोच, यदि हम नोच से देखें, हाथ को ऐसे रखें और ये अंगुली यदि आप देखना चाहेंगे कि ये जो हमारी उंगली है ये कहाँ जाती है, जीफी स्टर्नम पे जाती है। और जीपी स्टर्नम से यदि हम हाथ अंगूठे को फिर जीपी स्टर्नम पे रखें और जो उसकी नीचे की उंगली है वो फिर आप देख सकते हैं कि वो हमारी अम्बलाइकस पे जाती है। और अम्बलाइकस पे फिर हम यदि अंगूठा रखें तो हमारी जो नीचे की उंगली है, वो जो छोटी उंगली है, वो फिर सिम्फाइसिस प्यूबिस पे जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा पूरा थॉरेक्स और एब्डोमेन लगभग 3 जो हमारी पूरी ब्लास्ट 8-8 अंगुल का ये लगभग यदि हम इसको माने तो ये इतना हिस्सा होता है। और ये ऊपर का हिस्सा प्राणवायु का, बीच का हिस्सा समान वायु का, नीचे का हिस्सा अपान वायु। तो जो कूपर मर्म है, जैसे हमने बताया कि आणी और पूर्वी मर्म से आपने प्राणवायु की को नियंत्रित किया या प्राणवायु के फंक्शंस को रेगुलेट किया। और यदि कूपर मर्म की हम लोग बात करें तो इससे हम समान वायु के बात का कार्यों को और पाचक पित्त को भी हम लोग इससे स्टिमुलेट कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग देखते हैं कि मल मूत्र का जो बनता है तो उसमें ये मलधरा कला, पाचक पित्त, समान वायु और मलधरा कला, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जो भी मूत्र के निर्माण में ये सारी की सारी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। और यदि किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करना है तो हमें इंद्रवस्ती मर्म और कूपर मर्म को स्टिमुलेट करना पड़ता है। देखिए महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि यदि इंद्रवस्ती मर्म पर चोट लगेगी तो कौन से बीमारी होगी, रक्त क्षय से व्यक्ति की मृत्यु होगी। उन्होंने रक्तस्राव नहीं लिखा, रक्त क्षय से। तो पहले समझ में नहीं आता था, लेकिन जब हम लोगों ने इसको बाद में कोशिश की समझने की कि भाई यदि किसी व्यक्ति के इंद्रवस्ती मर्म, इंद्रवस्ती मर्म का शाब्दिक अर्थ क्या है, इंद्र जल के देवता है, वस्ती हमारे यहाँ पूरा जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, उसमें किडनी भी, यूरेटर भी, यूरिनरी ब्लैडर भी, उसको हम लोग वस्ती के तौर पर लेते हैं, जबकि वस्ती से विशेष रूप से यूरिनरी ब्लैडर का ही बोध होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम लोग देखें कि ये इरिथ्रोपोइटिन कहाँ बनता है, ये हमारे किडनी में बनता है। और जब किडनी खराब होते हैं तो उसमें इरिथ्रोपोइसिस नहीं हो सकती और व्यक्ति को की रक्त क्षय से मृत्यु हो सकती है। तो तब लगा कि भाई देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द इंद्रवस्ती मर्म एंड द किडनी एंड द होल यूरिनरी सिस्टम। तो उसमें भी क्या है, ये जब भी हम किडनी के फंक्शंस को स्टिमुलेट करना होता है, यदि हम उसके फॉर्मेशन से को प्रभावित कर रहे हैं तो हम इसमें कूपर मर्म के साथ साथ इंद्रवस्ती दबाएंगे। और यदि उसके ट्रांसपोर्टेशन में कहीं दिक्कत है तो उसमें सिर्फ हम इंद्रवस्ती मर्म को स्टिमुलेट करेंगे। हाथ और पैरों के मर्मों को स्टिमुलेट करने से, इंद्रवस्ती मर्म को स्टिमुलेट करने से हम उसके ट्रांसपोर्टेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने महत्वपूर्ण मर्म बिंदु हैं। और जो कूपर मर्म है वो जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, आप समझ सकते हैं कि जो हमारा अम्बलाइकस से, ये जीफी स्टर्नम से अम्बलाइकस के बीच में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, चाहे वो डायफ्राम हो, डायफ्राम के नीचे इधर लिवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, ड्यूडेनम, इसके साथ साथ पैंक्रियाज एंड स्प्लीन, ये सभी के सभी जो ऑर्गन्स होते हैं उनको हम उनके फंक्शंस को स्टिमुलेट करने का काम हम लोग कूपर मर्म के माध्यम से कर सकते हैं। कूपर मर्म को जानने की विधि हमने आपको पहले भी बताई है। इसको यदि हम अंगूठे को ऐसे रखें और हाथ की उंगली को इस क्रीज पे रखें तो देखेंगे कि बीच की उंगली जहां पे जाती है उस पर ये कूपर मर्म होता है। एंड इट इज ए वेरी टेंडर पॉइंट एंड जस्ट अपोजिट टू दिस पार्ट इन अनदर, दूसरी तरफ आप देखेंगे एक अंगुल नीचे इस क्रीज से नीचे भी दूसरा उसका हिस्सा होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि कूपर मर्म एक संधि मर्म है, लेकिन यदि हम संधि को ऐसे ऐसे करेंगे तो आप उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, इन मर्मों को जानने की कोशिश की कि मोस्ट सेंसिटिव जो पार्ट है उस स्पेसिफिक संधि के, उनको स्टिमुलेट करना शुरू किया। एंड जस्ट वी गॉट द ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स इन कंपेरिजन टू द मूवमेंट ऑफ द टोटल ज्वाइंट। कि हम लोगों ने कई बार पहले इसको ये करने की कोशिश की, भाई यदि इसको 100 बार 200 बार इसको ऐसे करेंगे रोज तो डायबिटीज कम हो जाएगी, तो नहीं हुआ। लेकिन जब ये जो सेंसिटिव पॉइंट हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए, इनर और आउटर, जिसको अंतः
प्रांत और बहिर्प्रांत कूर्पर का कहा है हम लोगों ने, उसको जब स्टिमुलेट किया तो देखा कि डायबिटीज लगभग 400 450 यदि डायबिटीज है तो उसका भी मैनेजमेंट इस मर्म के माध्यम से हो सकता है। और स्पेशली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ओबेसिटी, इवन for 2 or 3 months continuous stimulation of this Cooper murm, we can lose at least 20 or 30 kg of body weight। 3-4 महीने में 20 किलो वजन तक भी आप इस मर्म के माध्यम से कम कर सकते हैं। ये हम लोगों का रिकॉर्डेड और एक तरह से डॉक्यूमेंटेड स्टडी है। बहुत सारे केसेस को हम लोगों ने देखा, 15 किलो 20 किलो विदाउट एनी एक्स्ट्रा केयर आप इसको स्टिमुलेशन मर्म के स्टिमुलेशन से ठीक कर सकते हो। तो डायबिटीज हो गई और जितने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो गए, चाहे डिसलिपिडीमिया है, चाहे गाउट है, चाहे कोई और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, उसमें कूपर मर्म से आश्चर्यजनक रूप से फायदा होता है। स्पेशली नॉन सर्जिकल लीजन्स ऑफ दिस रीजन, यदि हम कहें कि भाई गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कूपर मर्म वी आर गोइंग टू रिमूव दिस स्टोन्स, तो ये गलत है, आप इसको नहीं कह सकते। लेकिन यू कैन इंप्रूव द फंक्शन ऑफ द जितना भी बाइल का सर्कुलेशन है, बाइल का जो कंसंट्रेशन है उसको नॉर्मल कर सकते हैं, बाइल के का जो एक्सक्रीशन है उसको ठीक कर सकते हैं, लिवर के फंक्शंस को ठीक कर सकते हैं। जस्ट यू कैन एम्प्टिंग ऑफ द स्टमक को आप रेगुलेट कर सकते हैं कि प्रॉपर एम्प्टिंग उसकी होनी चाहिए, सही समय पे उसकी एम्प्टिंग होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी इरिटेशन टू द डायफ्राम। यदि किसी को हिक्कफ है तो हिक्कफ के लिए भी इंस्टेंट मैनेजमेंट है कूपर मर्म के माध्यम से। इसलिए जस्ट यू कैन डील विथ a lot of functions of this region, जो इस रीजन के ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस को आप कर सकते हैं, इवन फॉर द पेन इन एब्डोमेन बाय द नॉन सर्जिकल लीजन्स। नॉन सर्जिकल लीजन होने वाले पेन्स को भी आप इसके माध्यम से आप ठीक कर सकते हो। वन पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए जो एक मर्म स्थान जो पैरों में होता है, अभी तक तो हम लोगों ने हाथ के मर्मों की चर्चा की, अब एक मर्म स्थान जो महत्वपूर्ण मर्म स्थान है जिसको हम लोग गुल्फ मर्म कहते हैं। जैसे आपने देखा कि हमारी ये जो जहां पर मणिबंध है, मणिबंध को भी हम लोगों ने क्या माना है, मणिबंध भी एक संधि मर्म है, और ऐसे ही पैर में उसको हम लोगों ने गुल्फ संधि कहा है। तो गुल्फ संधि और मणिबंध, एक हाथ में मणिबंध कहलाती है, पैर में गुल्फ कहलाती है। ऐसे ही यदि हम पूरे पैर के पंजे को यदि इसको हिलाते रहे तो उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता। बट वी हैव फाउंड 5 very important sensitive points in this region। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग इसमें 1 या 2 पॉइंट्स की चर्चा करते हैं, जिसमें 5 बिंदु हैं, उसमें हमें बहुत बारीक बारीक 5 बिंदु हैं, लेकिन यदि हम उसको ठीक से नहीं करते तो उसमें डिसेंसिटाइजेशन होने लगता है, बहुत सारी चीजें, पैर में सुनपन आ जाता है, स्किन उसमें नमनेस हो जाती है। इसलिए एक सबसे पीछे उसके, जैसे गुल्फ मर्म की टेक्निक आप लोगों को पता है कि उसके पीछे पोस्टीरियर नर्व जहाँ बंच होता है उसको हम लोग स्टिमुलेट करते हैं, तो उससे बहुत सारी चीजों में फायदा होता है। स्पेशली इन केस ऑफ द क्षार सूत्र, जब हम लोग क्षार सूत्र बदलते हैं तो अधिकांश केसेस में, अभी मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी लोग हमारे शल्य चिकित्सा के जुड़े हैं, वो जब क्षार सूत्र बदलते हैं तो उसमें भी सामान्य रूप से बहुत सारे केसेस में हमें इंजेक्शंस देने की, पेन किलर इंजेक्शंस देने की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में भी लगातार हम लोगों को पेन किलर टैबलेट उसको लगातार देनी पड़ती है 5-7 दिन तक। ऐसी स्थिति में यदि आप उसको गुल्फ मर्म को बता दें कि गुल्फ मर्म को स्टिमुलेट करने के से उसको फायदा होता है, तो बहुत सारे पेरिनियल पेन, जितने भी पेरिनियल पेन्स होते हैं उनको भी आप ये गुल्फ मर्म के माध्यम से स्टिमुलेट करके आप ठीक कर सकते हैं। तो ये भी अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम लोग इसको क्षार सूत्र चिकित्सा के साथ मर्म चिकित्सा को जोड़ सकते हैं, और इसको हम लोगों ने अभी अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के रिसर्च के लिए भी हम लोग इसको प्लान कर रहे हैं कि जस्ट वी कैन डू बिगर सैंपल्स में, लार्ज सैंपल साइज में हम लोग इसका उपयोग करें और इसकी इफेक्ट को देखें कि हाउ वी कैन स्टॉप द यूज ऑफ एनाल्जेसिक मेडिसिन आफ्टर द क्षार सूत्र जो चेंज है, उसके बाद जो हम मेडिसिन का यूज करते हैं उसको हम रोक सके, इसके लिए भी हम मर्म चिकित्सा का ये प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो गुल्फ मर्म है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिगार्डिंग, इसको हम लोग इतना तक मानते हैं कि यदि इसको हम लोग स्टिमुलेट करते हैं तो हम लोग नाभि के नीचे की जितनी भी बीमारियां होती हैं, नाभि के नीचे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, उनके फंक्शंस को या उनकी से रिलेटेड डिजीजेस में इस गुल्फ मर्म का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण मर्म स्थान है। और इसके बाद जो दूसरा मर्म स्थान होता है, जिसको हम लोग पहले
तल हृदय और क्षिप्र की बात तो हम लोग करते हैं। पैर में जो कूर्च और कूर्च सिर होता है, देखिए जो पैर में कूर्च और कूर्च सिर होता है, सामान्य रूप से एक हम लोगों ने एक सिद्धांत बनाया कि जो मर्म स्थान सामान्य रूप से हमारे दैनिक क्रियाकलाप के दौरान स्टिमुलेट होते हैं या दबते हैं, उनको सामान्य रूप से हम लोग स्टिमुलेट नहीं करते। जैसे पैर का कूर्च और कूर्च सिर, जब भी हम लोग चलते हैं तो वो प्रेशर आता है। लेकिन आप देखेंगे कि भाई जो आर्च ऑफ फुट है उसमें तल हृदय होता है, तो तल हृदय नहीं दबता पैर का तल। तो उसकी आवश्यकता होती है जब भी हम लोग देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति बेहोश होता है तो हाथ और पैरों के तले को हम लोग तल हृदय को स्टिमुलेट करते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ द ऑल सीजर्स एंड द इपिलेप्टिक फिट्स। सभी रोगों में तल हृदय मर्म से आश्चर्यजनक रूप से फायदा होता है। और इवन इन केस ऑफ द हाइपरटेंशन एंड द ब्रेन स्ट्रोक और द हार्ट अटैक, इन सब में भी ये तल हृदय मर्म एक प्री इमरजेंसी मैनेजमेंट के तौर पे हम इस मर्म स्टिमुलेशन का उपयोग करते हैं। तो ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि तल हृदय मर्म का सर्जरी में कितना महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इसमें हम रिवर्सल ऑफ द एनेस्थीसिया में भी इसको यूज कर सकते हैं। किसी में यदि कहीं इपिलेप्टिक फिट्स आ रहे हैं, कोई सीजर डिसऑर्डर हो रहा है ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसेस, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके माध्यम से हम ब्लड प्रेशर को सामान्य कर सकते हैं। और इसका यदि आप लोग भी देखें, हम लोग इसको विभिन्न संस्थानों के माध्यम से हम लोग इस पे कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता भी हम लोगों के साथ इसमें है कि हम लोग तल हृदय मर्म के माध्यम से कैसे रक्तचाप को तुरंत नियंत्रित कर सकते हैं, इस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। और ये रिसर्च प्रोजेक्ट हम लोग अपने विश्वविद्यालय में प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये जो तल हृदय मर्म है, ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण मर्म स्थान है। और इससे हम हृदय और मस्तिष्क के विभिन्न कार्यों को स्टिमुलेट करते हैं या उसको रेगुलेट कर सकते हैं। इसलिए इसका उपयोग सर्जरी के बहुत सारे रोगों में हम लोग कर सकते हैं। इसलिए इसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे शल्य तंत्र में इसका हो सकता है। इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को अभी हम लोगों को और एक्सप्लोर करना होगा। इसके साथ साथ यदि हम लोग देखें, जो हमारे कमर के पृष्ठ के मर्म है, जो पृष्ठ के मर्म है, उनको सामान्य रूप से जब हम लोग लेटते हैं तो उसका उपयोग नहीं करते। जब लेटते हैं तो वो दबते ही हैं, तो इसलिए पीछे के मर्मों को भी हम लोग सामान्य रूप से बहुत ज्यादा उपयोग नहीं करते। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बेड रिडन है, स्पेशली इन केस ऑफ द फ्रैक्चर्स, लंबे समय से 3 महीने तक यदि उसको बेड रिडन है या किसी और वजह से, ऐसी स्थिति में हमें कूर्च और कूर्च सिर मर्म को दबाने से उसमें प्राण की शक्ति का विस्तार होता है और उसमें ऊर्जा आती है। और उसको लगता है कि भाई हाँ, अब जैसे पहले लगता था कि भाई पैर हम रख नहीं पाएंगे जमीन पे, इफ द पेशेंट इज lying for a longer period on back, तो जब भी वो उठेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि वो पैर को नहीं रख सकता। लेकिन यदि हम उसके लगातार यदि कूर्च और कूर्च सिर मर्म को दबाते रहते हैं तो उसमें उसके टांगों में जान रहती है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज केसेस जहां पे कि लंबे समय तक एक तरह से पेशेंट को ऑन बेड रहना पड़ता है। उस स्थिति में हम लोग कूर्च और कूर्च सिर मर्म को दबाते हैं। एंड नाउ the pain related with the sciatica or prolapse intervertebral disc or the listhesis, यदि छोटा मोटा listhesis है, intervertebral disc prolapse है, and there is pain radiating towards the right or the left leg, in these conditions the क्षिप्रमर्म of the पाद क्षिप्रमर्म and the गुल्फमर्म is very important. उन दोनों स्थिति में हम दोनों चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं और इंस्टेंट पेन रिस्पॉन्स होता है। और साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो स्थिति महीनों, 2 महीने, 3 महीने के लिए भी खराब रहती है, वो विद इन फ्यू डेज आप पेशेंट को मोबाइल कर सकते हैं और एम्बुलेटरी कंडीशन में आप उसको ला सकते हैं। इसके बाद एक चीज और महत्वपूर्ण होती है जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे जो घुटने में तकलीफ है, और इसको हम लोग कहते हैं पेनफुल नी डिजीज। जस्ट वी हैव नेम्ड द होल सिम्टम्स अंडर द हेडिंग ऑफ द पेनफुल नी डिजीज। तो 3-4 बीमारियां होती हैं, उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। वन इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, सेकंड इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, थर्ड इज गाउट। बट द ऑस्टियोआर्थराइटिस, इन केस ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस, you have to go for the knee replacement in most of the cases. Severe osteoarthritis के केसेस में आप देखते हैं कि भाई उसमें नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होती है। एंड द पेशेंट हैज टू टेक द एनाल्जेसिक मेडिसिन एंड ही हैज टू टेक द असिस्टेंस ऑफ द मैनी स्टिक्स यूज करनी पड़ सकती है। उसको एक तरह से वॉकर का यूज करना पड़ सकता है। एंड ही कैन नॉट क्लाइंब द स्टेयर्स। तो उन सभी स्थिति में बहुत सारी कंडीशंस खराब होती हैं।
But in this condition, just we have to stimulate these marma points, especially the Kshipra marma, Gulf marma, and the Janu marma. Janu marma भी हम पैर के नीचे अंगूठे के ये जो हमारा नी जॉइंट है उसके नीचे दोनों तरफ जैसे हम लोग स्क्रू पर के दोनों साइड को दबाते हैं, इसी ढंग से पीछे पोस्टरली हम लोग इसको दबाते हैं, एंड साइमल्टेनियसली वी आर गिविंग प्रेशर टू द सुपीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट, और उसमें उसको भी हल्के से दबाते हैं, सीधे हम लोग जॉइंट पे उसको नहीं करते. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस स्टिमुलेशन जस्ट वी कैन डील विद द इंस्टेंट. हम लोग क्या कर सकते हैं कि जस्ट वी आर प्रोवाइडिंग द इंस्टेंट पेन रिलीफ इन केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस. तुरंत पेन रिस्पॉन्स होता है एंड पेशेंट का जो मोबिलिटी है, जो जॉइंट की नी की मोबिलिटी है उसको बढ़ जाती है. अभी हम लोगों ने एक इसमें एमडी एमएस का एक स्टूडेंट को ये काम दिया, and we got the tremendous response with the murmur therapy in osteoarthritis of the knee joint. तो हम लोग कह सकते हैं कि ये osteoarthritis जैसी conditions जिसमें knee replacement surgery is mandatory, and just we can avoid the surgical intervention with the murmur science and murmur therapy. तो ये भी एक सर्जरी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मर्म बिंदु हो सकता है. मैं समझता हूँ कि now the time is over and the session is open for the questions. Thank you. Thank you, sir, for a very wonderful and thought-provoking session. I am happy that many of the marma concepts which were not at all thought over, maybe I hope that many of the teachers must have not thought in that way, that have been highlighted by you, especially the identifying, locating the marma by your easy this particular demonstration, and as well as the interrelation between the marma, dosha, and the systems and the pathology and development. So, and the easy way of using the marmas for the elevating the pain as well as creating the particular positive energy into the body. Now, many of the questions are there, sir. The first question Yes, you can ask. Yes, sir. First question is whether any relation is there between the acupoints and the marma. Acupressure points. Yes, sir. And the marma points. Yes, sir. Just we cannot say that there is direct relationship between the acupressure, acupuncture, Anma, Moxibustion, Sesto, and Kempo, because I have traveled in many countries of the Southeast Asia and Japan, and I got the difference between different schools of the acupressure and the acupuncture. There is no similarity in these schools. Even these schools, they are not confirmed that these specific points are related with this specific reason or this specific function. But we can say that in case of Ayurvedic marma science, these marma points are well located and well identified by Maharshi Sushruta, and there is no confusion about these marma points. And in this condition, just we are giving the direct stimulation. Just I have told that it is the Mansira, Snayu, Asthi, and Sandhi. It is the combination of all these 5 body constituents. आपने देखा होगा कि जब भी मर्म ये एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर करते हैं तो वो कहीं एक छोटा सा मेथी का दाना उसके स्किन के ऊपर बांध देते हैं और कहते हैं कि जस्ट यू आर गेटिंग द रिस्पॉन्स ऑफ इट. बट इन आवर कंसेप्ट, whenever we are stimulating these marma points, ultimately we are giving stimulus to the Mansira, Snayu, Asthi, and Sandhi. तभी हम लोगों ने इसको कहा कि इट इज द मल्टीफोल्ड कैलकुलेटेड स्टिमुलस फ्रॉम पीएनएस टू सीएनएस. ये इसकी कैलकुलेशन हम लोगों ने बनाई है कि मल्टीफोल्ड है कि व्हेन वी आर टचिंग द स्किन ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस इज गोइंग इनटू द ब्रेन. यदि हम इसको और डीप जाते हैं, फेशिया पे वो स्टिमुलस जा रहा है तो फेशिया से भी एक अलग तरह का स्टिमुलस जा रहा है हमारे पास ब्रेन में. सेम कंडीशन इज विद अदर ऑर्गन्स, एंड इन द सेम वे द रिस्पॉन्स फ्रॉम द ब्रेन इज ऑल्सो कमिंग इन द मल्टी डायमेंशनल. तो ये मल्टीफोल्ड कैलकुलेटेड स्टिमुलस है एंड द सेम रिस्पॉन्स इज कमिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड इंस्टेंट रिस्पॉन्स इज गेटिंग वी आर गेटिंग, एंड देयर इज नो relationship, direct relationship between the acupressure points and the marma points. In continuation with the same, sir, another question is there which I feel that it is almost similar to the earlier question, that is whether this mudra and marma have got any interrelation. Hasta mudra. Yes, sir. Hasta mudra or the asanas. Yes, sir. Hasta mudras, there is
हाँ, there is a confusion in Ayurveda and in yogic sciences, because the all mudras are related with these 5 basic elements. 5 जो तत्व होते हैं उन पे निर्भर करती है, जैसे वायु मुद्रा है, आकाश मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा है, सारे के सारे विभिन्न तत्वों पे निर्भर करती है। हमारे यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे वो लोग कहते हैं कि भाई अग्नि कहीं होती है, दूसरे पॉइंट्स कहते हैं आकाश यहाँ है, हम लोग कहते हैं कि आकाश ये है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। क्यों ये क्यों? व्हेनेवर वी आर, हम लोग नब्ज देखते हैं, नाड़ी देखते हैं, तो क्या करते हैं, वी आर हम लोग वात किससे देखते हैं? इंडेक्स फिंगर से देखते हैं। वात किससे देखते हैं? इंडेक्स से देखते हैं। पित्त किससे देखते हैं? मिडिल फिंगर से देखते हैं। और जो कफ है हम किससे देखते हैं? हम इसे रिंग फिंगर से देखते हैं। तो ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, समझ रहे हैं हमारी बात? ये 5 तत्व जो है अलग अलग हो गए आयुर्वेद के हिसाब से, क्योंकि इसको हम आयुर्वेद के हिसाब से ही मानेंगे, हम लोग योग के हिसाब से नहीं मानेंगे। क्योंकि पृथ्वी और जल मिलकर किसको बनाते हैं? कफ को बनाते हैं। तेज से पित्त बन गया, वायु से वात बन गया, और आकाश में चारों तत्व होते रहते हैं, इसलिए इसका सब में अंतर्भाव हो जाता है। या तो वात पित्त कफ के अंदर आकाश होता है, या आकाश में वात पित्त कफ होते हैं। तो ये 5 तत्व मिलकर ये विभिन्न मुद्राएं जब बनाते हैं, जैसे हम ये वायु मुद्रा की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वायु मुद्रा, तो ये हमारे वायु जब आकाश का उससे ये मुद्रा जो होती है, अल्टीमेटली जस्ट दे आर द मुद्रास। Directly, just we are not stimulating any marma point regarding the mudra, but with the level of the vat pit kaf, ये मुद्राएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, and they can play important role in the management of the विशेषण of the vat pit and the kaf. वात पित्त कफ को हम लोग इससे मेंटेन कर सकते हैं। ये वायु मुद्रा हो गई। इसको यदि हम लोग कहें तो ये हमारी अग्नि मुद्रा हो गई। और इन तीनों को यदि हम इस ढंग से इसके साथ मिला के रखें तो ये हमारी जो मुद्रा हो गई, इसको हम आकाश के साथ हम लोगों ने पित्त को जो जल तत्व और पृथ्वी को कर लिया, तो ये अलग मुद्रा हमारी हो। तो आयुर्वेद के हिसाब से ये अलग है। देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मुद्रा एंड द मर्मा, लेकिन इसका प्रभाव वात पित्त कफ या पंच जो तत्व हैं इनके आधार पर होता है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you, sir. Sir, another usually the question which always ponders in the mind of the people, especially UG students, that is how to understand Sadhyo Pranahara Marma concept of Guda with special reference to hemorrhoidectomy or Kshar Sutra in the files. बिल्कुल बिल्कुल ठीक। द गुदा, अकॉर्डिंग टू महर्षि सुश्रुता, गुदा हैविंग द 3 वलीज, 3 वलियां होती हैं, और उसका प्रमाण होता है मुष्टिकावत। गुदा का प्रमाण एक मुष्टिका। इफ वन पार्ट ऑफ द गुदा इज ट्रॉमेटाइज्ड विद द सर्जिकल प्रोसीजर्स, द पेशेंट इज नॉट गोइंग टू बी डाई। समझ रहे हमारी बात? तो Yes. मर्म विद्ध होना जरूरी है। मर्म विद्ध होने का मतलब क्या है कि यू हैव टू पेनिट्रेट, आर पार निकलना जरूरी है। तो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द डेथ, इट शुड बी मर्म विद्ध। तो मर्माघात में लिखा है कि मर्म विद्ध होने पर, तो विद्ध होने का मतलब क्या है कि यू हैव टू पेनिट्रेट ऑल अराउंड द रेक्टम, तब जाके ये होता है। लेकिन जस्ट वी इन केस ऑफ द क्षार सूत्र, इन केस ऑफ द हेमरॉइड्स, वी आर नॉट डिस्ट्रॉइंग all parts of the rectum, and a very small part of the whole rectum is under consideration during the surgical intervention. So it is Sadhya Pranahara Marm, but in case of surgical procedure we are not hurting the whole marma point or the Guda mark. Thank you, sir. Sir, there is another question by Dr. Prabhakar Pandey, sir, that whether reverse of anesthesia and marma therapy, whether there is any relationship? Pardon? Reversal of the anesthesia and marma therapy. Reversal of the anesthesia. Yes. Reversal of the anesthesia. Whenever we have, in many cases, when there is patient is unconscious, the stimulation of Tal Hriday Marm gives very good results. Whenever the patient is comatose, we are stimulating the Tal Hriday Marm. We used to say that it is the early reversal from this state. इससे मरीज जल्दी से आता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि यदि एनेस्थीसिया हमने दिया है, तो यदि वो एनेस्थीसिया से अर्ली रिवर्सल होगा तो ब्रेन पर एनेस्थेटिक एजेंट के प्रभाव को भी कम कर सकते हैं और उसके साइड इफेक्ट्स को भी कम कर सकते हैं। तो जस्ट इट इज अ न्यू एवेन्यू फॉर द मर्मा साइंस एंड मर्मा थेरेपी इन द फील्ड ऑफ द एनेस्थीसिया। इसको भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं, इट इज न्यू एवेन्यू।
of the Thank you. research. Thank you, sir. Sir, there is this one, whether how we can utilize Marma therapy in management of the hypertension. Hypertension, it is very simple. मरीज को आपको लिटा देना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेजर द ब्लड प्रेशर, और उसको ब्लड प्रेशर का जो आप इसको कब बंधा हुआ उसको बांधे रहने दीजिए, खोलिए मत. इंस्टेंट उसको पेशेंट को लिटा दीजिए. पेशेंट को लिटाने के साथ साथ दोनों हाथों के तल हृदय मर्म को, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द तल हृदय मर्म इन ए वेरी प्रिसाइज वे. उंगली को ऐसे रखेंगे, उसकी बीच की उंगली को मोड़ेंगे जहां पे रखेगा. और दूसरा हमने बताया कि जस्ट यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन, स्ट्रेट लाइन. ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, यहां से यहां तक की दूरी 6 अंगुल होती है. 3 अंगुल पे इसको डिवाइड करेंगे. ये जो उंगली बीच का जगह आएगी, दीज आर द टू वे. देयर आर टू वेज टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर लोकेशन ऑफ तल हृदय मर्म. तल हृदय मर्म को आइडेंटिफाई करेंगे और इसको 15, 20, 25 बार स्टिमुलेट करेंगे. एक बार स्टिमुलेट किया दोनों हाथों का, फिर 2-3 मिनट के बाद फिर किया, 2-3 मिनट के बाद 4-5 आपने सिटिंग दे दी, एंड इंस्टेंट आफ्टर 4 और 5 मिनट आप उसको मेजर करेंगे. देयर इज डिक्लाइन ऑफ द 30 mm ऑफ Hg. इवन 30 mm ऑफ Hg का डिक्लाइन है इन सिस्टोलिक एंड द डायस्टोलिक. ठीक है, समझ रहे हैं? तो इसको प्रैक्टिसाइज करने की जरूरत है. इसको हम लोग अभी बड़े सैंपल साइज पे काम कर रहे हैं, बड़ा जो बिगर सैंपल साइज पे हम लोग इस पे काम कर रहे हैं. आफ्टर समटाइम्स जस्ट वी कैन से कि कितने पे क्या होता है, इसको हम आपको बताने की स्थिति में होंगे. बट इट इज वेरी 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 इफेक्टिव. वी हैव ट्राइड ए लॉट ऑफ केसेस ऑफ हाइपरटेंशन with the tal hृदय मर्म. Definitely, sir. Your research will be a boon, and it will be an advantage for many of the people who are on. Definitely, it is very good. Yes. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, another thing is that it is a very very tricky question, whether Marma therapy is useful even after knee replacement surgery of both the legs. I don't know. In case of the knee replacement surgery, yes. If the patient is gone through for the knee replacement surgery, and if there is some pain in the back or in the different part of the leg, again the gulf murmur and the Shepra murmur are effective way of treating the pain in the leg. उसके बाद भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन जहां हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात है उसमें तो कुछ करने का अवसर नहीं है, बिकॉज इट इज जो हम लोग वहां पे रिप्लेसमेंट सर्जरी कर लिया है तो इसमें कोई वो नहीं होती है. बट इन डिफरेंट केसेस ऑफ पेन, साइटिका, बैक एक, यू कैन यूज द मर्म पॉइंट्स ऑफ द क्षिप्र मर्म, गुल्फ मर्म, इंद्रवस्ती मर्म. ये आप उसको दबा सकते हैं. Thank you, sir. Sir, another thing is that the same Dr. Prabhakar Pandey sir is asking whether in children we can practice the Marma therapy. Yes, of course, it is the very effective way of healing in the children. We have started working on brachial plexus injury cases. जो बच्चा brachial plexus Erb's paresis में 14 दिन का बच्चे से हम लोगों ने शुरू किया है, and we got the tremendous response, and after 2 or 3 months patient was able to move his hand in all the directions. वो मैंने जब NIA में प्रेजेंट किया था तो उन केसेस के हम लोगों ने उसकी केसेस के प्री एंड पोस्ट फोटोग्राफ भी दिखाए थे. एंड इट इज वेरी इफेक्टिव, स्पेशली इन केस ऑफ सेरेब्रल पाल्सी. सारे जितने सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हैं, द मर्मा साइंस एंड मर्मा थेरेपी इज द बून फॉर द पेशेंट्स ऑफ द सेरेब्रल पाल्सी. एंड इवन 3 to 5 crore patients are of cerebral palsy are in our country. कम से कम 3 से 5 करोड़ बच्चे हमारे देश में हैं जिनको सेरेब्रल पाल्सी है, और उसमें मर्म चिकित्सा से अच्छी कोई चिकित्सा नहीं हो सकती. इट इज द बेस्ट वे टू हील इन चिल्ड्रन. चिल्ड्रन में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है, एंड यू कैन गिव द मर्मा थेरेपी टू इवन आफ्टर द 14 days. मैंने 14 दिन से के बाद के बच्चे को भी मर्म चिकित्सा से हम लोगों ने उसको ट्रीटमेंट किया है. Thank you, sir. I think Dr. Durga Bhanushali was asking for the same Marma therapy for autism. I think the same explanation Autism can be. In case of autism, the Tal Hriday Marm, it is very important. Another marm is the Manibandh Marm, along with the marma of the head. जो हेड के मर्मा है उनको हल्का हल्का स्टिमुलेट करना, एंड विद दिस मर्मा एंड हियर स्तपनी. ये जो सिर के मर्म है, अपांग, आवर्त हल्के से, स्तपनी, तल हृदय, एंड दिस मर्मा इज वेरी इफेक्टिव फॉर द ऑटिज्म.
Yes, sir. Thank you, sir. Manibal. Sir, yes, sir. So, as you are told that the marma, especially the we are speaking about the kidney functioning. In case of kidney failures, we are using this one marma. There polycystic kidney, whether it can be managed by the marma. If the polycystic kidney is there and a big amount of tissue is not working, यदि बहुत ज्यादा cyst है, polycystic है, multiple cyst है, पूरे दोनों kidneys they are filled with the many cysts, and जो renal parenchyma it is not working properly, then you cannot do anything. Understand? Yes, If sir. the smaller size cysts are there and the good amount of the renal parenchyma is remained, in that condition just you can maintain the function of the kidneys with the help of the Kurpar marm and the Indravasti marm. Yes, sir. Sir, any specific marmas supposed to be stimulated for gouty arthritis? For gouty arthritis. Yes, sir. Gouty arthritis. Gouty arthritis, because just I have told you that the regional marma points are very important if the lesion is present in the specific joint. So marma related with the corresponding marma points are very important. But for the gouty arthritis, because it is a metabolic disorder, the Kurpar marm is very important. Along with the corresponding marma points, you have to stimulate the Kurpar marma for the better metabolism of the protein or the better function of the liver. Yes, sir. Thank you, sir. Again, same with for migraine and headache. Do you suggest any particular marma? Yes, Apang and Avarth, these are very important. And just you can put the pressure over here. Just it is a closed lotus pose. It is very important. You have to press the head like this, and you are getting response. If the headache is due to the cervical spondylosis, then unsmarm and the Krikatika marm is very important. So unsmarm, Krikatika marm, along with the Apang and the Avarth, they are good for the migraine and the headache. Thank you, sir. Sir, again there is this one. The question is like whether marma therapy has got any role in management of epilepsy during in the episode period as well as not in the non-episodic period. Yes, especially in case of all seizure disorders and the epilepsy. Instant reversal is possible with the stimulation of the Talhridaya marma stimulation. If the patient having the epileptic fit or the attack of the epilepsy, episode of epilepsy, instantly just you can stimulate the Talhridaya marma and you are getting the instant reversal from this. And if you are regularly pressing these Talhridaya marma, the chances of the epileptic fits will be less, or the chances of the seizure will be less. Thank you, sir. Sir, whether have you conducted any of the observation studies, trials, especially to use the marma in the post-operative recovery periods of any case? Not at all. But in case of the fractures, non-healing fractures, I have shown one whole series of the X-rays or the AVN, avascular necrosis head of the femur in NIA Jaipur. So उसमें in that condition, the non-healing bone heals after the stimulation of these marma points. So especially in case of the bony healing, but you cannot heal the wound within 7 days with marma. You cannot heal wound within 1 day with the stimulation of marma. You can uh, remove the causes of non-healing, but you cannot provocate the healing of the wound because it is a natural process of healing in the body. Thank you very much, sir. It is very Many of important for the healing of the Hello, sir. Hello. Sunil, sir. कुछ डिस्कनेक्ट Whether हो you रहा है.
डिस्कनेक्ट हुआ है सर. हेलो. Wait. Hello. हाँ सर. I think there was Start a करो network विनायक. problem. Network problem. Wait. Hello. Hello. Yes sir. जी. Yes. हाँ sir. Yes sir. We जी continue with बताइए. our questions. Many of the questions are pouring in. Yes. So हाँ, just you can take. yes sir. Sir, again the state away this one. Whether Merma therapy, sinusitis already I think sinusitis whether it is useful. If it is useful, which Merma should be stimulated for sinusitis? Sinusitis, because the sinusitis having the problem of the anosmia, and Mahesh Shushud has told that if there is loss of sensation of smelling, then you have to press the Phanamarm along with this Sringatak marm and the Phanamarm and the Sringatak marm. They are important for the sinusitis. Yes sir. And what about a tennis elbow? Tennis elbow, just you have to put all 4 points, Ani marma, Indravasti marma, and the Kurpar marma, for the corresponding marma Yes. points. Yes, sir. And is there any role of Marma in case of calcaneal spur? In Calcaneal spur, sir. in calcaneal spur, there is no role, because it is just you have to wear the calcaneal silicon heel. Yes, And sir, yes, sir. for the pain, you can use the Shipra marma and the Gulf marma, but you cannot remove the calcaneal spur. You cannot remove the renal stone. You cannot remove the gallstone. You cannot remove the stricture of urethra. You cannot remove the growth of the intestine. Understand? So, you mean to Always say, you have to apply this marma therapy in non-surgical lesion. means only functional changes we can bring, not the structural changes, you mean to say, sir? In most of the cases, but if there is bone formation is there, you have to go for the excision. Yes, sir, If there is definitely, sir. impacted nail is there, paronychia is there, if there is an abscess, you have to remove it. You have to do the excision. So you Definitely. cannot, you can treat the inflammatory process, you can treat the cellulitis, you can treat other pathological things, but you cannot treat the hematoma. You cannot treat the cyst, sebaceous cyst. You cannot treat the abscess. Abscess is there. तो ऐसी कंडीशंस में मर्म चिकित्सा फायदा नहीं करती. Yes, sir. Sir, whether Marma in a day-to-day practice, whether we can use it for rejuvenation or to get rid of any general weakness? Yes, for the regeneration, just you have to go for the ऊपर से मर्म जो it is known as the self marma therapy. With the help of self marma therapy, Anganyas, Karanyas, what we are doing, we are going to stimulate first of all the this marma, Adipati marma, Ans marma, Ani, Urvi marma, Kur marma, and after at last, just we have to stimulate the Kalhriday marma. It is for the rejuvenation. It is known as the self marma therapy. So with the help of self marma therapy, you can rejuvenate yourself by stimulating these marma points regularly.
Yes, sir. Already in your talk, you mentioned about the some of the therapies, Marma therapies related to corona prevention and all. Can you Some once again? Hello. Sir. In what? your talk, already you Pardon? explained. Yeah. Am I audible, sir? No, no. Again, just repeat. Yes, sir. Yes, sir. Sir, as Repeat. yes, sir. For pandemic corona, already you have mentioned some of the preventive aspects, but I request Yes. as any preventive practices what we can do for Marma to be more immune for the corona and the COVID particular conditions. So you have to test these 2 points, Ani and Urvi. Urvi and Ani, both the points in the upper arm. These 2 points, known as the Stanmul and Stanrohit, Kshipra Marma for the throat, Kshipra and just it is over here, and Ans Falak and the Brehti posteriorly. These 6 or 8 Marma points are very important for the respiratory disorders. So Ani, Urvi, Stanmul, Stanrohit, Ansfalak and the Brehtimar. They are very important for the respiratory lesions. So it will be helpful for the COVID-like infections to protect ourselves from this infection. So the same repetition should be followed, sir, 15 to 18 times with the whatever the duration and repetitions you mentioned, that is 0.8 second per set per 0.8 second and 15 to 18 and 15 to 18 times repetition. in one sitting and 3 sittings in a day. 3 sittings in a day. Any special त्रिकाल संध्या precaution? के साथ किया जाने वाला कर्म है. Yes, sir. Any special precautions need to be taken during practicing Marma therapy? You have not to do this Marma therapy during the pregnancy. You have not to do this practice just after taking meals. खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है. खाना खाने के 1.5 घंटे बाद कर सकते हैं, खाने से पहले कर सकते हैं. If you are stimulating these Marma points after taking the full meal, especially in case of the Kurparmar, there will be vomiting, severe vomiting. यदि आपने खाना खाने के बाद कूपर को दबा दिया, पूरा भरा हुआ, so it will come out. So you have not to press or stimulate these Marma points after taking the full meal. You have to press these Marma points empty stomach or after 1.5 hours after taking meal. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, whether because we, as per my knowledge, there may not be any scale to assess the pressure what we are going to apply in the Marmas. So yes, what will be the criteria to put, means what should initially you have to press very gentle. You have to do the very gentle pressure, and just you have to assess उसका रोगी का सत्व देखना है and the pain threshold देखना है. Just you have to travel between the जो उसको acknowledge करे और afford कर सके उसके बीच में आपको just you have to move between these two ranges. तो उसको आपको उतना प्रेशर देना जितना वो सह सके और वो उसको एक्नॉलेज भी कर सके कि भाई प्रेशर उस पे आ रहा है. तो जस्ट यू हैव टू इट कम्स आफ्टर ए लॉन्ग प्रैक्टिस. इनिशियली यू हैव टू प्रेस योर मर्म पॉइंट्स. आप अपने मर्म को दबा के देखें किसमें कितना दर्द हो रहा है, कैसे होता है. तो इनिशियली यू हैव टू स्टार्ट विद योर ओन मर्मास एंड आफ्टर दैट जस्ट यू कैन गिव द प्रेशर टू द अदर पेशेंट्स. Yes, sir. Thank you, sir. So still so many questions are coming there, sir, but as this particular session is scheduled for the particular time, so I am thankful to you, sir. I'm thankful to you, sir, on the behalf of the National System Association and as well as Formulation of Ayurveda for enlightening us, enlightening us with your all this knowledge. And I request you, and I take a privilege to request you once again that you will be blessed if you once again enlighten us with the extended teacher. As per your you are most welcome. You are most welcome. You are most welcome. You are most welcome. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Hemant, sir. Hemant, sir. Sir, namaskar, sir. Really, yes, sir. Really, during this
COVID situations and lockdown period, really you have given more rejuvenation to our Shalyatantra peoples and Ayurveda fraternity for strengthening of our Shalyatantra. And really, I great pranams to you. My request, you accepted our invitation. Really, it is a long It's dream. my pleasure. Yes, sir, long dream. And definitely every student is asking about this. And I request one very important thing. Today you have seen that what Susuta's concepts and Susuta's points popularized by, I proud to say, Sunil Joshi sir is a popularized not only in India and throughout abroad, the motivate of the practice of self-marma chikitsa, yoga marma chikitsa, and so many. I have seen personally on the demonstration we conducted last year in August, last week in 30th, 31st. And it's a wonderful response with on the stage. We have seen more than 100 patients we treated on the stage on auditorium, and really appreciable. And I request all the Shalyatantra faculty members, Shalyatantra heads, and various things. You must to start Marma Chikitsa clinic in your Shalyatantra department. Why? Because this is one of the important unit and branch in Shalyatantra. Why? Because don't only not concentrate about anorectal diseases and general surgery. And I proud to say in our National Institute of Ayurveda, we have a general surgery unit is there, anorectal surgery unit is there. Another very important Asti Sandhi, Evam, Marma and Agata unit also is there. And I request all the Shalyatantra fraternity start Marma Chikitsa units in your department to popularize our Susuta's techniques. Don't say that the procedure or technique or manipulations are not mentioned in the Susu Samhita, not necessary at all. Charasutra procedure also not mentioned by Susruta, but popularized by the later Susruta's disciples. I proud to Sunil Joshi sir is one of the disciple and follower of Susruta to popularize this Marma Chikitsa, and more pranams and respects to Sunil Joshi sir. Definitely, already we started in work in NIA. Definitely, we expect within short all the departments, all the colleges in Shalyatantra department, definitely they will start Marma Chikitsa to popularize our Susuta's concepts and techniques. Thank you once again. Thank you, sir. Definitely, we will discuss more related to see more messages and more what happened questions occurs, but lack of time. Definitely, we will discuss related to only the interactive sessions with audience. Definitely, great pranams to Sunil Joshi sir for attended this program, interaction with Marma Chikitsa in various aspects. And I thankful to Parul University and motivated by National Susuta Association. It is our association, joined all Shalyatantra fraternity in one platform to fight for our Susuta's concepts. Thank you, Lord, sir. Namaskar. Namaskar, sir. Namaskar, sir. Namaskar, sir. Namaskar. Namaskar. Thank you, sir. We will